नमस्कार। क्रिकेट वर्ल्ड कप की इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से ईडन गार्डन्स में भारतीय बल्लेबाजी चल रही है और खास तौर पर इस वक्त विराट कोहली जिस तरह से अपने 49वें वनडे शतक की ओर बढ़ रहे हैं, उससे उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आज वो सपना जो है वो उनका पूरा हो और पूरे देशवासियों का भी पूरा हो। तो अगले आधे घंटे हम भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मुकाबला चल रहा है उस पर बात करेंगे, तमाम पहलुओं को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। और फिलहाल आपको सीधे ले चलते हैं नई दिल्ली के मंडपम, जहां पर वर्ल्ड फूड इंडिया में राष्ट्रपति का जो है वो संबोधन हो रहा है। For organizing the second edition of WFI after the first one in 2017, the ministry aims to make it the largest processed food show of the country and organize it annually. I think WFI will go a long way in making the rich Indian food culture more familiar to the world. This will also prove to be a great platform for micro, small and medium enterprises in this sector to better align themselves with larger domestic and global players. From a business perspective, India offers an exciting opportunity. Its fast-growing economy offers a large market. Moreover, its rich knowledge base of agricultural and food processing offers lesson to our times. I have in mind millets, which had nourished generations and generations, but we are getting forgotten in cities and have now been rediscovered. Talking not of their great nutritional potential, the UN declared 2023 as the year of millets. I am told that 2017 edition of WFI attracted a large number of investment commitments and rupees 22,711 crore of investment has been grounded or completed so far. In this edition too, I am sure the investor community must have found immense opportunities in our food processing and allied sectors. WFI has the potential to help India become a kitchen to the world. The event also serves as an ideal platform to showcase India as a sourcing hub for agricultural and food commodities. It can then generate ample opportunities for Indian sellers in the global marketplace. Innovators and entrepreneurs would have found much opportunities here. They could learn a lot from the women of India too. Women here have innovated in food processing over the centuries by creating recipes for varieties of jams, pickles, and so on. They have also been model entrepreneurs by running small-scale food-related industries from home. I am glad to learn that during the inaugural session of this event, Prime Minister Narendra Modi ji proposed to offer assistance in the form of seed capital to more than 1 lakh members of self-help groups involved in food processing activities. All cultures have many interesting sayings on the theme of food. We too have many proverbs that say, in essence, we are what we eat. In that case, no amount of attention we pay to this crucial subject is enough. Though this event is concluding today, but I am sure you will carry on the conversations that began here. The interactions over these 3 days must have led to collaborations. Dear friends, food, as you know, is a defining characteristic of humankind.
tens of thousands of years ago, when human beings started evolving as a unique species. Language and food were among the factors that made them different from their nearest cousins. The shift from foraging to agriculture and from raw food to cooked food was the beginning of civilizations. No wonder food is invariably the cornerstone of any culture. In India, we take pride in our immense diversity, and that is ample reflection in our plates too. Moreover, just as food helps forge bonds among strangers, it has been food that has historically brought different cultures closer. Fruits and vegetables first grown in one part of the world have over centuries become part of all other parts of the world. Trade in spices and condiments triggered commerce between nations and globalizations. Ladies and gentlemen, food remains one of the basic necessities of life for every human being. It is distressing indeed to realize that a substantial number of human beings go to bed on an empty stomach in many parts of the world. This puts a strain on the great economic and technological progress humankind has achieved. It would have been a different matter if the world was not producing enough to feed all. Science has drastically improved yield and promises to even deliver much more. The large-scale prevalence of hunger is not due to the lack of production, but due to the lack of distribution. Is it also due to the lack of empathy? I don't believe so. During the pandemic, when many people could not earn in order to feed the family, civil society and religious organizations organized many kitchens, mass kitchens. And I must also mention the Indian government's initiative for consistently providing free food grains to the poor apart from the subsidized grains. It was arguably the biggest drive of its kind. Let me also mention here that we must consider the environmental cost of what we eat. The previous generations did not have to worry on this count, but the time has come when we have to choose our menu in a way that avoids any harm to nature. We need to make conscious decisions to shift away from those foods that add to the problem to climate change and to shift towards the ones that are good for not only our health but also for the health of the planets. Dear friends, at the conclusion of this truly mouth-watering event, I should be offering you something like desserts, and here I am, like a typical Indian host, offering you even more food for thought. But then we also have a tradition of offering packaged meals to our guests for their return journey, and I am offer my views on food to you in that spirit. Let me end by once again congratulating the organizers, participants, and also the winners of the WFI Awards. My best wishes are with you all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. तो आप ये देख रहे थे सीधी तस्वीरें भारत मंडपम से नई दिल्ली के, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थी वो जिस तरह से जो वर्ल्ड फूड जो कार्यक्रम था, इंडिया कार्यक्रम, उसके समापन समारोह को जो है वो संबोधित कर रही थी और इस बारे में वो बता रही थी कि इसकी जो अहमियत है कार्यक्रम की, उस अहमियत को उन्होंने सामने रखा। इस कार्यक्रम में 8 जिलों के 200 बच्चे जो थे वो शामिल हुए थे। तो तमाम जो इसकी अहमियत है और तमाम इसका जो सरोकार है, जो भोजन का सरोकार है, उसको भी उन्होंने सामने रखा।
तो बहरहाल अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खेल की खबरों का, जहां पर मुकाबला जो है वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेहद दिलचस्प हो चला है और विराट कोहली जो हैं वो अब अपने शतक से चंद कदम की दूरी पर हैं। तो विश्व कप में आज भारत का सामना जो है वो कोलकाता में ईडन गार्डन्स के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 4 विकेट पर 297 रन बना लिए हैं। रोहित और शुभमन ने टीम को तेज शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी निभाई। रोहित शर्मा 24 गेंद पर 40 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शुभमन गिल को केशव महाराज ने 23 रन पर बोल्ड किया। इसके बाद श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर कोहली ने रन बनाना जारी रखा। जल्द ही कोहली ने अर्धशतक पूरा करने में सफलता पाई। श्रेयस अय्यर ने 77 रन बनाए और कोहली जो हैं वो अब जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और इस पूरे खेल पर जो मुकाबला चल रहा है दिलचस्प, उस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं कोलकाता में मौजूद अपने संवाददाता नारायण से। तो जी नारायण, विराट कोहली जो है वो 99 पे पहुंच चुके हैं, यानी बस अब 1 रन की जो दूरी है वो रह गई है उनके और मास्टर ब्लास्टर के उस रिकॉर्ड के बीच, जो कि इतने समय से हम लोग देखते आ रहे थे। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि न केवल विराट कोहली के लिए लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए। जिस तरह के एक मॉडर्न डे ग्रेट के नाम से जाने जाते हैं विराट कोहली, उन्होंने दर्शाया है कि वो कितनी काबिलियत रखते हैं, कितने बड़े बैट्समैन हैं और क्या उनका स्किल है। अगर इस टूर्नामेंट में ही देख लें तो जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, भारतीय पारी को संभाला। पहले मैच की बात कर लें तो 2 रन पे 3 विकेट हो चुके थे भारत के। उसके बाद कोहली ने जो कैंपेन को एक स्टार्ट दिया, वो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो उनका कद है वो महानतम बल्लेबाजों में आता है और आज उनका जन्मदिन भी है। इस मौके पर वो दिख रहा था, कल हम जब प्रैक्टिस करते कोहली को देख रहे थे, वो डिफरेंट जोन में लग रहे थे। उन पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि ये एक बड़ा मुकाबला है उनके लिए। एक वो उसको ऐसे ले रहे थे कि एक रूटीन मैच है। और वो फैंस से भी जिस तरह से वहाँ पर फैंस उनको काफ़ी चीयर कर रहे थे, काफ़ी वो उनको जोर जोर से कोहली कोहली बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी शांति से जो फैंस थे उनको भी कूल और काम रहने को कहा, क्योंकि वो जानते थे कि बड़ा मौका है। और जिस जोन में वो दिख रहे थे लग रहा था कि कुछ कोहली कुछ कमाल करने वाले हैं और वो कमाल करने के लगभग पहुंच चुके हैं। और हम आशा करते हैं कि जिस तरह का वो क्रिकेट जो आगे आने वाले मैच है वो अहम होने वाले हैं गौरव, क्योंकि ये एक मैच है 2 सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच। जिस तरह की उनकी बीच प्रतिस्पर्धा है वो पूरे टूर्नामेंट में हमने देखी कि कैसा क्रिकेट उन्होंने खोला। भारत 7 मैचों में 7 जीत के साथ टेबल के टॉप पे है। और साउथ अफ्रीका की बात करें, उन्होंने भी 1 मैच हारा, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है जो टीम में एक फ्रेंडशिप दिखती है, एक दूसरे को जो बैकअप कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक कप्तान है, सुलझा हुआ कप्तान है जो अपने सभी खिलाड़ियों को बैक करता है। इसके कारण आप देखिए ना, जब रिजल्ट तभी आते हैं जब एक टीम में आप देखते हैं कि सभी लोगों का एक मनोबल बड़ा होता है। जब टीम का कप्तान प्लेयर्स को बैक करता है, वो प्रैक्टिस सेशन में नारायण आपको यहाँ पर रोकेंगे और बता दें आपको भी कि आपको बता दें कि कोहली ने अपना शतक जो है वो पूरा कर लिया है, यानी वनडे क्रिकेट का उनका 49वां शतक जो है वो आ गया है और ये आया है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। तो वनडे में कोहली ने वनडे करियर का अपना 49वां शतक लगा दिया है और इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 48 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी कि विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया है अपना 49वां वनडे शतक। कोहली ने 289 मैच की 277वीं पारी में यह कारनामा किया है। कोहली ने रबादा की गेंद पर यह शतक पूरा किया, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी। तो नारायण, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि कोहली जो है वो अपने आप में जिस तरह से उनको चेज मास्टर का भी दर्जा दिया गया, अब हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने एक ऐसे समय पर टीम को आखिर संभाला और श्रेयस अय्यर के साथ एक 134 रन की साझेदारी की, जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आप मानते हैं कि जब से एक तरह से कहना चाहिए जो कैप्टेंसी का जो उनका रोल था, उस रोल के बाद से जिस तरह से वो वापस आए हैं और जब से कैप्टेंसी उनके हाथ से गई और जब से उन्होंने कैप्टेंसी को छोड़ा, उसके बाद से उनके खेल में कहना चाहिए पहले भी वो बहुत बेहतरीन थे, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से खेलकर उन्होंने अपना खेल खेला है, लगातार हर मैच में अपने आप को जिस तरह से एक कहना चाहिए एक हल्कापन उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस किया है और वो हल्कापन उनकी बल्लेबाजी में लगातार नजर आ रहा है। नारायण,
जी बिल्कुल, देखिए अगर भारतीय टीम की कप्तानी कहते कोई एक आसान काम नहीं है, बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि आप जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेली जाती है, लगातार टीम देखिए तो दौरा करती रहती है, लगातार क्रिकेट खेलती रहती है, आईपीएल खेलती रहती है, इस लिहाज से जो कहते हैं मेंटली बहुत एक टफ चैलेंज रहता है किसी भी क्रिकेट के लिए, किसी टीम को संभालना। लेकिन हाँ, वो प्रेशर रहता है कप्तानी का, वो हटता है, तो एक दूसरे जोन में खेल रहे हैं कोहली। आप अगर देखिए तो उनकी इनिंग्स पहले एकदम एग्रेसिव कोहली रखते थे एक समय पे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप में बदलाव किए, अपने खेलने के तरीके में बदलाव किया, अपना जो पर्सनैलिटी है उसमें काफ़ी बदलाव किया। वो साफ नज़र आता है उनके खेल में और उनकी पर्सनैलिटी में, और बहुत ही कूल और काम लग रहे थे कल भी कोहली, क्योंकि सभी बोल रहे थे, पूरा स्टेडियम में जो दर्शक आए थे, जो स्टेडियम में कल जो फैंस आए थे, सभी उनको चीयर कर रहे थे, सभी यही आशा कर रहे थे कि कोहली इसमें एक बड़ा अहम रोल निभाने वाले हैं, और वो लग रहा था, और उन्होंने कारनामा कर दिखाया, और ये भी दिखा दिया कि उन्हें क्यों मॉडर्न डे ग्रेट कहा जाता है। एक क्रूशियल मैच, और इस मैच के लिहाज से बात करें तो उन्होंने जिस तरह से रोहित शर्मा ने बढ़िया स्टार्ट दिया भारतीय टीम को, जो उन्होंने जिस तरह से जो उनके साउथ अफ्रीकन बॉलर्स थे उनकी पिटाई की, उसके बाद 2 विकेट गिरे तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली, एक मैच्योरिटी के साथ पारी को आगे ले गए, और भारत को यहाँ पर इस मुकाम पे लेके आए कि वो भारत आसानी से उस मैच को, इस स्कोर को डिफेंड कर सके, क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाज कर रहे हैं, तो पूरा यकीन है कि कोहली ने जो आज शतक मारा है, जो अपने फैंस को गिफ्ट किया है, देश को गिफ्ट किया है, और दिखाया है कि वो कितने बड़े महान खिलाड़ी हैं। बिल्कुल नारायण, जिस तरह से कोहली का जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप में नायाब है, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उनका एक पूरा एक मोमेंटम रहा है, जिस तरह से अप डाउन्स के बीच में वो अपने आप को लगातार सामने लाते रहे हैं। हमने पिछले मैच में भी देखा कि किस तरह से उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अगर बात कर ले तो उस मुकाबले में बेहतरीन तरीके से खुद को सामने रखा। उससे पहले हमने देखा था किस तरह से न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ उनकी लगातार अच्छी पारियां जो थी वो लगातार बल्ले से निकलती आती रही हैं। तो इस सब के बीच में किस तरह से, क्योंकि आप काफ़ी समय से, क्योंकि आप एक क्रिकेट भी फॉलो करते रहे हैं, तो अगर कोहली को अगर खास तौर से उठा करके देखा जाए तो किस तरह से उन्होंने अपने मोमेंटम को जो है वो बरकरार रखा है, क्योंकि एक ऐसा भी समय था, एक ऐसा भी पैच था जब उनके लिए बल्ले से उनके रन नहीं निकल रहे थे, तो उस सब के बीच में एक मेंटल प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, लेकिन उस सब प्रेशर को किस तरह से उन्होंने हैंडल किया है। और आज इस वर्ल्ड कप में कहना चाहिए शायद उनके लिए सबसे जो बेहतरीन दौर है वो शायद ये वर्ल्ड कप है। जी बिल्कुल गौरव, अगर बात करें तो इस वर्ल्ड कप की जिस तरह से उन्होंने एक सुलझी हुई पारियां खेली इस वर्ल्ड कप में, पहले मैच की बात कर ले, उसके बाद भी जिस तरह से वो लगातार खेल रहे हैं, पिछले मैच में भी वो सेंचुरी के करीब थे। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी होते हैं गौरव, हमेशा जो अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस रखते हैं एक विशेष पल के लिए रखते हैं, और आज उनका जन्मदिन था, वो मतलब एक वो जानते हैं कि कब अपना ए गेम दिखाना है, और आज उन्होंने वही किया, और एक यहाँ पर शानदार शतक खेला। और जो आपने बात कही कि जिस तरह से बीच में एक उनका आउट ऑफ फॉर्म भी रहे काफ़ी लंबे समय तक, सभी लोग सवाल उठा रहे थे कि विराट कोहली की सेंचुरी नहीं लग रही है, बहुत लंबा समय हो गया, कम से कम 1000 दिन के लगभग उनके बैट से इतना लंबा समय हुआ था कि सेंचुरी नहीं आई थी। लेकिन ये किसी भी खिलाड़ी, कितना भी महान खिलाड़ी हो, कितना भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो, एक उसके कैरियर में ऐसा फेस आता है कि जब वो एक आउट ऑफ फॉर्म होता है। लेकिन ऐसे में एक तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से जो अन्य साथी खिलाड़ी थे, कैप्टन थे, उनका भी उनको साथ रहा। जब इस तरह का बैकअप रहती है टीम में, खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस रहता है, तो कहीं ना कहीं वो भी उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, वापस देते हैं। और ये बड़ी बात है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे को बैकअप कर रहे हैं। जब टीम में अच्छा माहौल होता है तो उसी का रिजल्ट आपको दिख रहा है कि किस तरह का परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी कर रहे हैं। और यह हम देखेंगे कि अब आने वाले, जब ऑलरेडी इंडिया यहाँ पर क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए, तो जो एक अगला मैच बता नीदरलैंड्स के साथ है, उसके बाद जो मेन जो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा सेमीफाइनल। और हम आशा करते हैं कि जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में खेली है, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं दिखता। और राहुल द्रविड़ ने भी कल बात की थी, जब उनसे पूछा था कि क्या वो अनबीटन रह सकते हैं इस टूर्नामेंट में, क्योंकि अभी तक 9 मैच लीग फेज में खेल रहे हैं, उसके बाद 2 मैच और, तो राहुल द्रविड़ ने यही कहा था कि हम इतनी आगे की नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ जो अगला मैच है, जिस मैच में को खेलना है उस बारे में सोचते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो सिर्फ इसी मैच
का स्टडी करते हैं, उसी मैच पर फोकस करते हैं और उसका रिजल्ट दिख रहा है भारतीय टीम को किस तरह से वो क्रिकेट खेल रही है। और सभी लोग, सबको अपना रोल तय है कि मुझे क्या करना है। तो वही यहाँ पर एक खास बात है, क्लैरिटी है सबके माइंड में, मेरा क्या रोल है। तो बताया गया जो खिलाड़ी अगर खेल नहीं रहा है, जो बेंच में, उसको भी पता है कि जब ये खिलाड़ी इंजर्ड होगा तब आपकी एंट्री होगी। अब देखिए जिस तरह से हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए तो उससे पहले, उसके बाद जिस तरह से शमी को लेके आया गया तो उनको जिम्मेदारी की, तो उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई और एक ऐसा प्रदर्शन किया कि वो लग रहा है कि इंडिया, जिस तरह से उनका प्रदर्शन है, उन्होंने सभी बॉलर्स को पीछे छोड़ दिया। जबकि वो फ्रंट लाइन सबसे पहले जो बुमराह और सिराज करते हैं उसके बाद आते हैं। तो किसी, अगर कहीं जिस तरह का परफॉर्मेंस है, ऐसा लग रहा है कि वो इनिंग ओपन करते हो, ओपन एज ए बॉलर वो इनिंग पारी की शुरुआत करते, लेकिन उनको उनका रोल पता है, किस रोल पे काम करना है। तो ये खास बात है, सबको क्लैरिटी है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस प्रकार का रिजल्ट, इस प्रकार से भारतीय टीम जीत रही है यहां पर। जी नारायण, तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने वनडे करियर का अपना 49वां शतक जड़ दिया है और इस 49वें शतक के साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49वें शतक के रिकॉर्ड की जो है वो बराबरी भी कर ली है। तो जल्द ही उम्मीद करेंगे, क्योंकि इसके बाद अब भारत को अगला मुकाबला जो है वो नीदरलैंड्स के खिलाफ है और उसके बाद टीम जो है वो अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। तो जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी नारायण। लेकिन जिस तरह से हम आपके पीछे देख सकते हैं कि अब अंधेरा हो चुका है काफ़ी, और अब जो कोलकाता का जिस तरह का जो वेदर है वो भी काफ़ी, आपने देखा कि आसमान में काफ़ी बादल जो हैं वो भी छाए हुए हैं। तो इस सब के बीच में अब जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने उतरेगी तो कहीं ना कहीं जो ड्यू की समस्या है वो टीम के आड़े आ सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो तापमान जो रात में घटकर लगभग 22 तक चला जाएगा तो ड्यू फैक्टर रहेगा। तो कोशिश यही रहेगी कि ड्यू फैक्टर से एक बॉलर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि बॉल को अच्छी तरह से ग्रिप में नहीं बनता। लेकिन जिस तरह से हमारे भारतीय गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हैं वो क्योंकि काबिल तारीफ है, और जिस तरह से जा रहे, लगता है कि एक अच्छा सा मतलब जो बोर्ड पे स्कोर खड़ा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जब एक 300 से ऊपर स्कोर बोर्ड में रन लग जाते हैं तो मुश्किल होता है किसी भी विरोधी टीम के लिए। और जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं जरूर परेशान होंगे। साउथ अफ्रीकी बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो भी कल उनके कप्तान टेम्बा बाउआ कह रहे थे कि वाकई में जिस तरह की वो भारतीय बॉलर्स गेंदबाजी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। जरूर एक थ्रेट है, लेकिन वो भी कोशिश करेंगे कि इस मैच पे अपना कंट्रोल करें। जिस तरह से वो केशव महाराज और तब शमशी उनके टीम में है, और केशव महाराज को काफ़ी कंट्रोल मिला है, अच्छी बॉलिंग की। तो कहीं ना कहीं हमारे स्पिनर्स भी सोच रहे होंगे कि क्योंकि इस पिच में सबके लिए कुछ ना कुछ, चाहे पेस बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। और जिस तरह से हमारे बॉलर्स लोग गेंदबाजी कर रहे हैं, मुश्किल हो सकता है साउथ अफ्रीका के लिए, डिस्पाइट द फैक्टर की ड्यू यहाँ पर होने वाला है। बिल्कुल मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया जो है वो एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ चली है और टीम ने एक अच्छा स्कोर भी कर लिया है इस वक्त। लेकिन नारायण, अगर एक इस मुकाबले को छोड़ दें, वैसे अगर पूरे मुकाबले को देखें, जिस तरह का सफ़र रहा है टीम का, टीम ने इससे पहले 7 लगातार जीत दर्ज की है, शानदार सफ़र रहा है, हर खिलाड़ी का अपना योगदान भी रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इस एक जो जिस पेस के साथ टीम बढ़ रही है आगे, उसके बाद, क्योंकि अब ज़्यादा मुकाबले नहीं हैं, अब एक नीदरलैंड्स के खिलाफ लीग मुकाबला है, उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला है, तो यहाँ से क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा किसी चेंज के साथ अब जाना पसंद करेंगे? क्योंकि अब कोई भी टीम जो होती है जब इस स्टेज में पहुंच जाती है तो शायद वो एक चेंज शायद करना नहीं चाहती, क्योंकि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है शायद उसी के साथ ही बरकरार रहना चाहती है। तो क्या ये एक दुविधा, या कहना चाहिए कहीं एक दुविधा होगी टीम के सामने, या फिर टीम के लिए स्मूथ होगा रास्ता कि जो कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं उसी कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाना है? जी बिल्कुल गौरव, पहले ही जिस तरह से इस टूर्नामेंट की बात करें तो एक सबके लिए रोल एकदम सेट कर दिया था कि आपके लिए ये रोल है। ओपनिंग में क्लियरली ये था कि शुभमन गिल को स्टार्टिंग में मैच टूर्नामेंट से पहले डेंगू हो गया था, उसके कारण ईशान किशन आए थे। तो रोल क्लियर है, ईशान किशन को बताया जा चुका है कि आपकी एंट्री तब होगी जब कोई ओपनर इंजर्ड होगा। इसलिए रोहित शर्मा ने भी और कोच राहुल द्रविड़ ने भी क्लियर किया है कि जो जिसका रोल है, जो टीम में फिट बैठ रहा है, उसको खिलाएंगे। तो लगता नहीं कि कल
कल भी राहुल द्रविड़ ने ये बात कही थी कि वो कहीं ना कहीं चेंज के अगेंस्ट हैं। जब उनसे पूछा गया था कि क्या मौसम या कंडीशंस के चलते क्या वो कुछ चेंज कर सकते हैं, तो लगा नहीं कि उनके जवाब से कि वो चेंज करने के मूड में है। गौरव, अगर देखिए तो आप जिस तरह की वर्ल्ड कप से पहले जितने भी टूर्नामेंट हुए इंडिया जीत नहीं पाया, उसमें काफ़ी चॉपिंग और चेंजेस होते थे लगातार टीम में। तो इससे क्या होता है, खिलाड़ियों का जो मनोबल होता है वो गिरता है। उनको भी लगता है कि क्या मेरी जो जगह है टीम में पक्की है कि नहीं है, तो कहीं प्रेशर के अंदर जो होता है खिलाड़ी खेल नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह से MS धोनी थे, वो हमेशा एक सेट ऑफ प्लेयर के साथ लेके चलते थे और वो खिलाड़ी भी अपने कप्तान को, जो उनका कप्तान भरोसा दिखाता था, उस पर खरे उतरते थे। तो यही क्लैरिटी हमने देखी कि किस तरह से वो इस टीम में। नारायण, आपको यहाँ पे मैं 2 मिनट रोकूंगा और आपसे बता दूं कि भारत ने 326 रन बनाए हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के सामने अब अंडर लाइट्स 327 रन का टारगेट है जिसे टीम को अचीव करना होगा अगर टीम जीत इस मुकाबले में दर्ज करना चाहती है। तो नारायण, अपने आप में एक बड़ा टारगेट, आप वहां पे मौजूद हैं, क्या कहते हैं कि कितना ज्यादा ये टफ जो है वो दक्षिण अफ्रीका के लिए होने वाला है, क्योंकि उनके सामने अब 327 रन का टारगेट है। तो भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 326 रन बनाए हैं। विराट कोहली की शतकीय पारी जो है वो देखने को मिली है। 49वां वनडे का जो शतक है वो उन्होंने लगा दिया है और इस शतक के साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सबसे अधिक शतक के रिकॉर्ड की वनडे में बराबरी भी कर ली है। तो जाहिर तौर पर विराट कोहली के लिए यह मुकाबला बेहद खास रहा है। इसके अलावा विराट कोहली के अलावा अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 77 रन की पारी खेली। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच एक मजबूत 134 रन की साझेदारी सामने आई, जिसे इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अहम समय पर यह साझेदारी सामने आई, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल के जो विकेट थे वो गिर चुके थे। रोहित शर्मा ने तेजी से 40 रन की पारी खेली थी और एक अच्छी शुरुआत दी थी। जिस तरह से हमने देखा है पिछले मैचों में भी रोहित शर्मा जो है वो एक अच्छी स्टार्टअप देते हैं, एक अच्छा स्टार्ट देते हैं, तो यहां भी एक अच्छा स्टार्ट देखने को मिला है। तो इस तरह से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 327 रन का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं अब भारतीय तेज गेंदबाजों पर भी रहने वाली है। तो जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि जसप्रीत सिराज और बुमराह की जो जसप्रीत सिराज और शमी की जो जोड़ी तिकड़ी है वो क्या कुछ कमाल दिखाती है और किस तरह से, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले मुकाबलों में भी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और गेंदबाजी डिपार्टमेंट जो है वो बेहद शानदार रहा, तो आज एक बार फिर से उसी डिपार्टमेंट से फिर से उम्मीद रहेगी कि वो यहां भी जीत का परचम जो है वो लहराए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।